میرے ماں باپ نے میرا نام اسلم رکھا تھا۔ یہ نام مجھے بچپن سے ہی بوجھ سا لگتا تھا، اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا یہ بوجھ اور بھاری محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے اپنے خط و خال دیکھے تو مجھے لگا کہ یہ نام میری شخصیت کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا تو ایک لمبا چوڑا جوان سامنے کھڑا ہوتا، جس کا بدن کثرتی تھا، بازو مضبوط تھے، سبز آنکھیں روشنی میں چمکتی تھیں اور رنگت ایسی تھی کہ لوگ ایک بار دیکھ لیں تو دوسری بار نظر ہٹانے کو دل نہ کرے۔ ایسے میں مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ اسلم تو ایک عام سا نام ہے، جیسے کسی دودھ والے یا محنت کش کا ہوتا ہے، لیکن میں تو مختلف ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے نام کو اسلم سے بدل کے المیر رکھوں گا اور ساتھ خان بھی لگا دوں گا۔ حالانکہ ہم خان بالکل بھی نہیں تھے، لیکن مجھے یہ نام ایسا لگا جیسے یہ میرے اندر کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دن کے بعد میں اپنے آپ کو المیر خان کہنے لگا، اور دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا کہ اب میری پہچان میری خوبصورتی کے مطابق ہے۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، جہاں پر میرے ماں باپ اور چھوٹی بہنیں رہتی تھیں۔ ان سب کو میرے اس فیصلے کا پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ میں ان سب کو کچھ بتائے بغیر اپنے ایک دوست کے پاس شہر آ گیا تھا۔ شہر میرے لیے نیا تھا، اور یہاں ہر چیز بڑی چمکتی دمکتی تھی۔ میں نے ساتھ زمین بیچ کے لائے ہوئے پیسے بھی رکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان پیسوں سے کوئی کاروبار کروں گا اور اپنی قسمت آزما کے دولت بنا لوں گا۔ لیکن شہر میں قدم رکھتے ہی میں نے دیکھا کہ کاروبار اتنے آسان نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے اپنے جال ہیں، اور ہر کوئی اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں ہے۔ میں نے ایک کے بعد ایک کاروبار آزمایا، کبھی کپڑے کا بزنس شروع کیا، کبھی چھوٹے موٹے مال میں سرمایہ لگایا، لیکن ہر بار نقصان ہوا اور میرے پیسے کم ہوتے گئے۔ آخر کار مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم اتنے خوبصورت اور ہٹے کٹے جوان ہو، تمہارا جسم مضبوط ہے، تمہاری آنکھوں میں کشش ہے، تمہاری رنگت چمکتی ہے، تو کیوں نہ اس سب کو استعمال کرو اور ماڈلنگ یا ڈراموں کی دنیا میں قدم رکھو۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا کہ ہاں، یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ امیر ہونے کا خواب تو ہر کسی کو ہوتا ہے، اور اگر میری شکل و صورت میری سیڑھی بن سکتی ہے تو اس میں کیا برا ہے۔ میں نے ماڈلنگ کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے، لیکن وہاں بھی سینکڑوں لوگ اسی خواب کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں دن رات آڈیشن دیتا رہا اور چھوٹے موٹے رولز کی تلاش میں در در مارا گیا۔ کئی بار مجھے دھکے ملے، کئی بار مجھے لائن میں کھڑا بھی نہ ہونے دیا، اور کبھی میری فائل دیکھے بغیر ہی انکار کر دیا گیا، لیکن میں ہار ماننے والا نہیں تھا۔ آخر کار ایک دن ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو اپنے آپ کو پروڈیوسر کہتی تھی۔ وہ بہت اعتماد سے بات کرتی تھی اور مجھے یقین دلانے لگی کہ وہی مجھے آگے بڑھا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا نیا ڈرامہ بن رہا ہے اور اس میں تمہیں ہیرو بنا سکتی ہوں، بس مجھے خوش کرنا ہوگا۔ شروع میں نے اس کی بات کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی دیسی چیز چاہیے تو میں گاؤں سے منگوا دیتا ہوں، یا آپ کے کوئی اور کام ہے تو بتائیں، میں حاضر ہوں۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مال تو مجھے دیسی چاہیے، لیکن دیسی گھی نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کے میں اور بھی الجھ گیا، مگر خاموش رہا۔ اگلے دن اس نے مجھے اپنے گھر بلایا، مجھے بہترین کھانا دیا، مجھے اے سی والے کمرے میں بٹھایا جہاں خوشبو اور ٹھنڈک نے مجھے گھیر لیا، اور پھر وہ اپنے اصل مطلب پہ آ گئی۔ اسے صاف کہا کہ یہاں پہ ایسے ہی کام ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دیتے ہیں تبھی ان کو آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، مگر اندر سے میں نے سوچا کہ اگر یہ قربانی مجھے ہیرو بنا سکتی ہے تو اس میں میرا کیا جا رہا ہے، نقصان تو اسی عورت کو ہوگا جو یہ سب مانگ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور سوچا کہ اب میرا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ لیکن چند دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ جس کردار کے وعدے اس نے کیے تھے وہ کسی اور لڑکے کو دے دیے گئے ہیں، وہ بھی سفارشی تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میں تو استعمال ہو گیا ہوں۔ میرا وجود، میرے خواب سب اس کھیل کا حصہ بن گئے جس میں میں محض ایک مہرا تھا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ یہ سب میں نے صرف اپنے دوست کو بتایا جو شہر ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو یہ سب عام ہے اور تمہیں آئندہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میرے دل میں ایک ضد بیٹھ گئی۔ میں نے طے کر لیا کہ میں یہی راستہ اپناؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی بار گرنا پڑے، کیونکہ میرے دماغ میں صرف ایک بات چل رہی تھی کہ مجھے ہر حال میں امیر بننا ہے اور مجھے ہر حال میں اپنی پہچان بنانی ہے۔ اس عورت نے مجھے ہیرو کا کردار تو نہیں دیا، لیکن اس نے میرے اکاؤنٹ میں 25,000 بھیج دیے اور مجھے میسج بھیجا کہ اس اچھے ٹائم کے لیے جو ہم نے گزارا۔ اس عورت کی طرف سے جب مجھے پیسے ملے تو میرے اندر ایک طوفان سا اٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا میں نے اپنی عزت بیچ دی ہے یا پھر یہ محض ایک کاروبار تھا۔ میں نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے نوٹوں کو بار بار دیکھا۔ وہ نوٹ میرے لیے عام نہیں تھے،
ये वो नोट थे जिन पे मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ लिखा हुआ था। मैंने ये पैसे अपनी खूबसूरती के बदले लिए थे और ये एहसास मुझे अंदर से तोड़ भी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा था कि आखिरकार ये शहर ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ खरीदो फरोख्त पे चलता है। जब मैंने उन नोटों को गिना तो 25,000 रुपये निकले। मैंने उनमें से 10,000 अपनी माँ को भिजवा दिया और बाकी अपने पास रखे। अगले दिन जब मैं उन्हीं पैसों से खाना खरीद के खाने बैठा तो दिल में अजीब सा बोझ था। मैंने सोचा कि बाबा की ज़मीन गिरवी पड़ी है, वो पैसे भी ख़त्म हो गए, मेरे तमाम कारोबार नाकाम हुए, मेरी मेहनत ज़ाया गई और अब मैं इस हाल में पहुंचा हूं कि अपनी ही खूबसूरती बेच के रोटी खा रहा हूं। ये सोच मुझे अंदर से चीर रही थी, लेकिन रोटी के हरने वाले के साथ ये एहसास भी आ रहा था कि आखिरकार मैंने कुछ ना कुछ तो कमाया है। मैंने रात भर सोचा और नतीजा यही निकला कि अगर यही रास्ता है तो मैं इसको कारोबार ही बना लूँ। मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि अब मैं इस धंधे को पेशा वाराना तरीके से करूँगा। मैंने अपने मोबाइल से तस्वीरें निकाली और एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे मैं अपनी तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। कभी मैं शर्ट के बटन खोल के अपनी मजबूत छाती दिखाता, कभी आधी आस्तीन चढ़ा के अपने बाजुओं की रगें नुमाया करता, कभी मैं पानी के नीचे खड़ा होके अपने बाल गीला करता और वो तस्वीरें कैमरा में उतारता। उन तस्वीरों में एक कशिश थी, एक ऐसी आग जो देखने वाले के दिल को छू ले। मैंने जानबूझ के उन्हें इस तरह बनाया कि देखने वाला लम्हे भर को भी नज़र न हटा सके। ये तस्वीरें देखने वाली ज़्यादातर औरतें थीं। जवान लड़कियां सिर्फ आहें भर के रह जाती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन अमीर औरतें जिनके शौहर या तो बाहर मुल्क चले गए या फिर दुनिया से ही रुखसत हो गए, वही असल गाहक थी। उन औरतों के अंदर अभी जवानी का शोला बाकी था और मेरी तस्वीरें देख के वो शोला भड़क उठता। वो खुद ही मुझसे रब्ता करती और मुझे बुला के अपने घरों और फ्लैटों में बुलाती। उनकी जगह महफूज होती, पैसा उनके पास वाफर होता और मुझे हर बार मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रकम भी दी जाती। खाना भी बेहतरीन खिलाती और कभी कभी तोहफे तहाइफ भी देती। एक औरत तो ऐसी निकली कि उसने मुझसे कहा कि उसे 10 दिन चाहिए। 10 दिन वो मुझे अपने साथ रखना चाहती थी। उसने पहले ही दिन 10 दिनों के हिसाब से रकम मेरे हाथ में थमा दी और साथ ही महंगे कपड़े और जूते भी खरीद दिए। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो लगा कि मैं जीत गया हूँ। मेरी हार कहाँ है? मैं पैसा भी ले रहा हूँ, इज्जत भी मेरे हाथ में है और दुनियावी सहूलतें भी मिल रही हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि जब कोई औरत ये सब करती है तो उसकी इज्जत जाती है, लोग उसे बदनाम कहते हैं। लेकिन अगर मर्द ये करे तो लोग उसे बुरा नहीं कहते, उल्टा समझते हैं कि उसकी किस्मत जाग गई है। इस सोच ने मेरे दिल को मजबूत किया और मैंने ये मान लिया कि ये मेरा नया कारोबार है। कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटते हुए मैं अपने दिल को समझाता कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैंने अपनी खूबसूरती को दौलत में बदल दिया है। लोग मेहनत मजदूरी करके हलकान हो जाते हैं और आखिरकार खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन मैं अपनी सूरत और जिस्म के बलबूते पर ना सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ बल्कि अपनी माँ को भी भेज रहा हूँ। अपने दोस्तों के सामने भी शान से जीता हूँ और अपने लिए भी ज़िंदगी आसान कर रहा हूँ। मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि अब मैं किसी और रास्ते पे नहीं जाऊँगा। यही रास्ता मेरी ज़िंदगी को संवारेगा और यही मेरा असल सरमाया है। कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो मेरी मुस्तकिल गाहक बन चुकी थीं। वो जब चाहती मुझे बुला लेती। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो जाता था कि आज उनका मूड है और अगर मैं चाहता तो उनसे पैसों में इजाफा भी करवा लेता, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं ना आया तो उनकी रात अधूरी रह जाएगी। इसलिए जब मैं ज़्यादा पैसों की बात करता तो वो मान भी जाती थी। मुझे लगता था जैसे मैं उन औरतों के लिए एक आदत बन चुका हूँ, एक नशा बन गया हूँ और उस नशे के बदले वो कुछ भी देने को तैयार रहती थी। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो सिर्फ मेरी शक्ल और जिस्म पे नहीं बल्कि मेरी मेहनत पे यकीन रखती थी। वो समझती थी कि मुझे मज़ीद तवानाई की ज़रूरत है। एक बार एक बहुत अमीर औरत जिसका शौहर बाहर के मुल्क रहता था, उसने मुझसे कहा कि मेरे शौहर की कुछ गोलियां रखी हैं जो वो इस्तेमाल करता था, अगर तुम भी ये खा लो तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं ये सुन के खामोश हो गया। मेरे दिल में अजीब सा खौफ आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पैसे तो ले रखे हैं और जब पैसे ले लिए जाएं तो फिर नौकर की ते नखरा की वाली बात ही बनती है। इसलिए मैंने वो गोलियां खा ली। औरत तो बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे कुछ देर बाद सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग फट जाएगा, मगर मैंने उसके सामने कुछ जाहिर न किया। मैंने हंसते हुए उसका साथ दिया। उसने मुझे बाद में एक अच्छी जगह से खाना खिलाया और अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे घर तक छोड़ने भी आई। वो जाते हुए बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। बाबा की ज़मीन जो गिरवी रखी थी उसकी किस्तें भी मैंने उन्हीं औरतों के पैसों से बनानी शुरू कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे ये कैसा भी धंधा हो,
मगर इससे घर का भी भला हो रहा है और ज़मीन भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ वापस आ रही है। मैं अपनी माँ को भी पैसे भेज देता और जब भी फ़ोन पे बात होती तो वो खुशी से दुआएं देती। मैं सोचता कि अगर औरत से मुझे 20-25 हज़ार से कम नहीं मिलता तो जब महीने में 10 या 20 औरतें आ जाती हैं तो फिर तो मेरी कमाई लाखों तक पहुंच जाती है। और इसी ख्याल से मेरा दिल मुतमईन हो जाता। लेकिन एक तरफ ये भी हकीकत थी कि मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मेरे बदन में कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी और मैं आईने में खुद को देखता तो लगता जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो मुझे अंदर से खा रही थी वो ये थी कि अभी तक मुझसे सिर्फ बूढ़ी औरतों ने राब्ता किया था। कोई जवान लड़की गलती से भी मेरे पास नहीं आई थी। मैं सोचता कि अगर जवान लड़की आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हकीकत ये थी कि जवान लड़कियां मुझसे दूर ही रहती। मैं उन बूढ़ी औरतों से तंग आ गया था। लेकिन फिर वही बात कि कभी कभी इंसान ऐसा काम कर रहा होता है जो उसे पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है क्योंकि उसके बदले पैसा आ रहा होता है। मैंने भी यही सोच लिया था कि चाहे दिल चाहे या ना चाहे, मगर पैसा मेरी ज़रूरत है और यही पैसा मेरे मुस्तकबिल को संवारेगा। 2 दिन के लिए मैं गांव भी गया। लोग पूछने लगे कि शहर में क्या करता है, तो मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि मैं एक बड़े दफ्तर में काम करता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं किस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ तो वो हैरान रह जाते। मेरी माँ मेरी बात सुन के बहुत खुश हुई। वो दुआ देती रही कि मेरा बेटा शहर में नौकरी कर रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन मेरा एक कज़न जो थोड़ा पढ़ा लिखा था वो शक करने लगा। उसने कहा कि तूने तो आईटी पढ़ी ही नहीं, तो फिर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन गया? तूने तो सिर्फ बीए किया है, वो भी इस्लामियात के साथ। मैंने बड़ी तसल्ली से कहा कि आजकल बड़े शहरों में शॉर्ट कोर्सेज होते हैं और उन्हीं कोर्सेज से बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं। अब तो पूरी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं रह गई। वो ये सुन के मुतमईन हो गया और बोला, हाँ भाई, बड़ा शहर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती। जब भी कोई मुझे देखता वो यही कहता, बेटा तू कमज़ोर हो गया है, तेरी गालें अंदर को धंस गई हैं, पहले जैसा तरोताज़ा नहीं लगता। मैं हंसते हुए जवाब देता कि अब तो सूखे सूखे मर्दों का दौर है, लोग उन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं। यही आजकल का नया फैशन है और यही खूबसूरती की पहचान है। लेकिन दिल के अंदर मैं जानता था कि ये कमज़ोरी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और ये सब कुछ मुझे किसी बड़े अंजाम की तरफ ले जा रहा है। मैंने सुना था कि बड़े शहर में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है और लोग इसको आम सा काम समझ के करते हैं। लेकिन जब मैंने खुद ये काम शुरू किया तो मुझे 6-7 महीने हो गए थे और अभी तक मुझे अपने जैसा कोई भी इंसान नज़र नहीं आया था। कभी कभी दिल में ये सवाल भी उठता कि क्या इस पूरे शहर में सिर्फ मैं ही ये धंधा कर रहा हूँ या और भी कई लोग हैं, लेकिन वो मुझ तक क्यों नहीं पहुँचे। मेरी तबीयत दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब हो रही थी। कभी सर में दर्द, कभी नींद का ना आना, कभी जिस्म में अजीब सी कमज़ोरी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं हॉस्पिटल के कमरे में बैठा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि एक आदमी अंदर गया। उसने डॉक्टर से लंबी बातचीत की। मैं बाहर बैठा सुनता रहा। वो अपनी बीमारी और टेस्टों का जिक्र कर रहा था। मुझे कुछ बातें समझ आईं, कुछ नहीं आईं, लेकिन अंदाज से लग रहा था कि वो भी मेरी ही तरह की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, दवाई लिखी और कहा कि आराम करो और परहेज़ करो। मैं बाहर आया तो देखा कि वही आदमी बाहर खड़ा है। शायद वो अपनी दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर लाइन में लगा हुआ था। उसका चेहरा बुझा हुआ था, जैसे अंदर ही अंदर कोई भारी राज छुपा हो। मैंने उसके करीब जाके कहा, भाई आप अंदर डॉक्टर से क्या बातें कर रहे थे? अगर बुरा ना मनाओ तो मुझे बताओ। उसने हैरानी से मुझे देखा और कहा, तुम्हें क्यों बताऊं, मेरी ज़ाती बात है। मैंने मुस्कुरा के कहा कि यार मैं भी वही काम करता हूँ जो तुम करते हो। तो उसने चौंक के कहा कि क्या मतलब, तुम भी ये काम करते हो? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ मैं भी यही धंधा करता हूँ, क्योंकि मजबूरी है, अगर ना करूँ तो पैसे कहाँ से आएंगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं भी यही करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। मैंने फ़ौरन पूछा, क्यों छोड़ दिया, जब इस काम में इतने पैसे हैं? तो उसने मेरे कानों में वो जुमला डाला जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। उसने कहा कि ज़िंदा रहूँगा तो करूँगा ना। मैंने चौंक के पूछा, क्या मतलब, एक ऐसा जुमला है? तो तलखी से मुस्कुराया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे एड्स हो गया है। मैं जैसे पत्थर का हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब, किस तरह हो गया तुम्हें एड्स? उसने अपने कामते हाथों को रगड़ते हुए कहा कि एक बूढ़ी औरत के पास में गया था, उसे ये बीमारी थी, लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई। वो तो खुद मरने वाली थी
उसने सोचा कि किसी को बता के क्या करेगी। उसने अपना मतलब निकाला और चली गई, लेकिन मैं उसके धोखे का शिकार हो गया और अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। आज डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। जो भी बीमारी आती है अब सीधी मुझ पे हमला कर देती है। ये बात सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने घबरा के कहा, भाई ये क्या कह रहे हो? उसने कहा, यही सच है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम भी मेरी एक बात सुन लो, अभी भी वक्त है, ये काम छोड़ दो। अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हारे पास जिंदगी है। ये सब छोड़ के कोई भी दूसरा काम कर लो, चाहे मजदूरी ही क्यों ना हो। मैंने गुस्से से कहा, मजदूरी करके क्या होगा? क्या उससे इतने पैसे आ जाएंगे? क्या मैं अपनी माँ बहनों को खुश रख सकूंगा? तुम्हें पता है कि आज के दौर में कौन हलाल खाता है? सब धोखे और हराम ही का तो खेल है। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन याद रखना, जिंदगी रहेगी तो पैसा भी आ जाएगा। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो ये पैसा किसके पास जाएगा? ये सुन के उसने अपना नुस्खा लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। मैं देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। एक लम्हे को मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा। ये सब कुछ मुझे किसी अंधे कुएं की तरफ धकेल रहा था। लेकिन फिर अचानक मेरा फ़ोन बजा। ये मेरी माँ का फ़ोन था। उससे बड़े खुश लहजे में कहा, बेटा मुबारक हो, हमने तेरी शादी के लिए लड़की देख ली है। जब उसने लड़की का नाम लिया तो मैं हैरान रह गया। ये वही लड़की थी जिससे मैं दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। लेकिन उसका बाप हमेशा यही कहता था कि वो बेटी किसी नौकरी वाले को देगा, और मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं थी। मगर अब हालात बदल गए थे। मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने खुद रिश्ता देने की बात की है। अगर हम चाहें तो रिश्ता पक्का हो सकता है, बस थोड़े पैसे चाहिए होंगे। लड़के के घर जाके बात पक्की करनी है। मेरी आंखों में ख्वाब चमकने लगे। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने फ़ोन खोला तो देखा कि मेरी एक ग्राहक का पैगाम आया हुआ है। वही औरत जो हर बार मुझे 25,000 रुपये देती थी, उसने मुझे बुलाया था। मैंने झट से माँ को कहा कि अम्मी आप फिक्र न करें, मैं रात तक 25,000 रुपये आपको भेज दूंगा। मेरी माँ ने दुआओं में डूबा हुआ जवाब दिया कि जीता रहे मेरा बेटा, तू तो बड़ा कमाओ निकला है। और मेरी आंखों के सामने वो ख्वाब सजने लगे जिन्हें मैं बरसों से देख रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। दिल ही दिल में एहतियात करने की कोशिश की कि कहीं मुझे भी कोई बीमारी न लगे। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं मोहतात हूँ, लेकिन सच ये था कि इस काम में एहतियात नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये खेल ही ऐसा था जिसमें हर वक्त खतरा छुपा होता और कोई नहीं जानता था कि कब कौन सा धमाका हो जाए और किसकी ज़िंदगी पलक झपकते बर्बाद हो जाए। जब मैं गांव वापस आया तो वहाँ का माहौल ही अलग था। खुशबुएं बिखरी हुई थी, हर तरफ लोग हंसी खुशी में मसरूफ़ थे और बात पक्की होने की वजह से मेरा घर भी रोशन रोशन लग रहा था। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ कमरे में बुला लिया और बहुत प्यार से कहा कि बेटा तू इतनी मेहनत करता है, शायद इसीलिए हर महीने इतने ज़्यादा पैसे भेज देता है, लेकिन एक बात है, तू बहुत कमज़ोर हो रहा है, पहले जैसा नहीं लग रहा। तेरी तबीयत हर वक्त ख़राब सी रहती है, तेरा रंग भी पीला सा पड़ गया है। बेटा कुछ दिन की छुट्टी लेके यहीं गांव में रह जा। देसी घी, दूध और देसी मुर्गी का गोश्त खाएगा तो तेरे अंदर जान आ जाएगी और तू दोबारा से पहले जैसा मजबूत हो जाएगा। माँ की ये बातें सुन के मेरा दिल भर आया, लेकिन मैं उनको क्या बताता कि खाने की कमी नहीं थी, बल्कि असल वजह कुछ और थी। शहर में जो औरतें मुझे अपने पास बुलाती थी वो ना सिर्फ मुझे अच्छा खाना खिलाती, बल्कि ऐसी ऐसी डिशें बनाती जिनका जायका मेरे गांव के किसी भी खाने से कम नहीं होता था। वो औरतें सारी ज़िंदगी किचन में गुजार चुकी थीं और उनके हाथ में ऐसा जादू था कि खाने की खुशबू ही इंसान को ज़िंदा कर दे। लेकिन मसला ये था कि मेरा जिस्म अब वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अंदर ही अंदर मैं कमज़ोर होता जा रहा था, मगर माँ को ये सब बताने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं छुट्टी लेके आ जाऊँगा और शादी से पहले अपनी सेहत पर खूब मेहनत करूँगा ताकि बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। माँ ने मेरी बात मान ली और खुश हो गई। लेकिन जब मंगनी की तस्वीरें आईं और मैंने खुद को उन तस्वीरों में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे गाल पिचक गए थे, मेरा बदन इतना दुबला पतला हो गया था जैसे कोई 1.5 पसली आदमी खड़ा हो, और वो एतमाद और मसल्स जो कभी मेरी पहचान थे वो सब खत्म होते जा रहे थे। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपने आप को खो रहा हूँ। यही नहीं बल्कि एक दिन एक औरत जिसके साथ मेरा लेन देन चल रहा था उसने मुझे मैसेज में साफ साफ लिख दिया कि तुम तो किसी काम के नहीं लगते, तुम तो ऐसे हो जैसे 1.5 पसली हो, और मुझे तो लगता है कि तुम ज़्यादा देर मेरे सामने टिक भी नहीं सकोगे, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं रही। मैं तो खुद 110 किलो की हूँ, तुम क्या मेरा साथ दोगे?
یہ پڑھ کے میرا دل جیسے رک گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ یہ عورت خود موٹی اور بے ڈنگی ہے اور مجھے ریجیکٹ کر رہی ہے، لیکن جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ آئینے میں جو عکس تھا وہ شخص نہیں تھا جس پہ کبھی عورتیں فدا ہو جاتی تھیں۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کم از کم 10 دن تک یہ کام نہیں کروں گا اور اپنی صحت پہ دھیان دوں گا۔ میں نے دیسی گھی کھایا، انڈے کھائے، گوشت کھایا، دودھ پیا، ہر چیز آزمائی تاکہ دوبارہ پہلے جیسا بن سکوں۔ لیکن 10 دن گزرنے کے بعد بھی میری حالت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ ہاں، میری جیب ضرور خالی ہو گئی، سارے پیسے کھانے پینے پہ لگ گئے اور اب جیب میں کچھ نہیں بچا تھا۔ میں مجبور ہو گیا کہ دوبارہ وہی کام کروں جس سے بھاگنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ میرے دوست کو اس سب کا علم نہیں تھا، وہ صرف اتنا دیکھ رہا تھا کہ میری حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ بار بار کہتا، یار تیری شکل اچھی نہیں لگ رہی، کیا کر رہا ہے تو اپنے ساتھ؟ لیکن میں ٹالتا رہا۔ میں نے کبھی اس کو سچ نہ بتایا کیونکہ سچ میں اپنی زبان سے بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا، اور اندر ہی اندر میرا جسم اور میری روح دونوں بکھرتے جا رہے تھے۔ کچھ دن بعد مجھے ایک عورت کا میسج آیا۔ وہ میری تصویریں دیکھ کے آئی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد میری تعریف کی اور کہا کہ مجھے تو تم جیسے سوکھے سوکھے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اسے کہا کہ میرا شوہر بہت موٹا ہے، لیکن فی الحال وہ گھر پہ نہیں اور ہم لوگ ہوٹل میں ملیں گے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت امیر عورت ہے۔ اس عورت کے میسج کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہوا، کیونکہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک سیاستدان کی بیوی تھی جو اپنے شہر میں ایک نام رکھتی تھی۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، اور اس کی حیثیت بھی ایسی تھی کہ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اسے جب کہا کہ مجھے تم جیسے لوگ ہی پسند ہیں تو میرے اندر ایک الگ سا غرور بھی پیدا ہوا کہ دیکھو میری قیمت بڑھ گئی ہے، اب عام عورتیں نہیں بلکہ سیاستدان کی بیویاں بھی مجھے چاہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر موٹا ہے، بھاری جسم رکھتا ہے اور اکثر گھر پہ نہیں ہوتا، اور مجھے ایسے مرد پسند ہے جو جوان ہوں، فٹ ہوں، جن کے ساتھ وقت گزار کے اچھا لگے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میرے لیے ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ایک دن میں جتنا کما لوں گا شاید دوسرے لوگ مہینوں میں بھی نہ کما سکیں۔ اس نے مجھے ہوٹل کا پتہ بھیجا، اور میں نے جب اس ہوٹل کے بارے میں سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی عام ہوٹل نہیں تھا بلکہ اس کے کمرے کا کرایہ ہی 50,000 روپے تھا، اور ادھر تو بڑے بڑے وزراء اور غیر ملکی لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے رات کے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اور 1,00,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر دیے۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں نے سوچا کہ مجھے اب کم محنت کر کے زیادہ پیسے ملیں گے، اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہا کہ جب کام ہو جائے گا تو 1,00,000 اور بھیج دے گی۔ میں خوشی خوشی تیار ہوا، اپنے بہترین کپڑے پہنے اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں ہوٹل میں پہنچا تو مجھے چابی نہیں دی گئی، بلکہ ریسیپشنسٹ نے کہا کہ آپ کی میزبان کمرے کے اندر موجود ہے اور وہیں پہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایک طرف تو یہ بات تھی کہ میں پہلی بار اتنی بڑی شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اتنے مہنگے ہوٹل میں پہلی بار قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے تک پہنچا تو اندر داخل ہوا، اور یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کمرہ صرف کمرہ نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک لاؤنج بھی تھا، ایک کچن بھی تھا اور ایک الگ ڈرائنگ روم بھی تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ عورت کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ تیار ہو رہی ہے یا بیڈ روم میں ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کے ہر جگہ دیکھنا شروع کیا، کبھی ڈرائنگ روم میں جھانکا، کبھی بیڈ روم میں، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر میرا دھیان باتھ روم کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت زمین پہ گری پڑی تھی اور اس کے چہرے پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے ہلایا جلایا، لیکن وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور اب کیا ہوگا۔ میرے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ یہاں تو CCTV کیمرے لگے ہوں گے، اور اگر کسی نے مجھے اس کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تو الزام سیدھا میرے سر پہ آ جائے گا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ عورت میرے ساتھ تھی اور میں نے ہی اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے کے اندر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ شاید اتنے بڑے لوگوں کے لیے یہ سہولت رکھی گئی تھی، لیکن میرا ڈر اپنی جگہ قائم تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینہ میرے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک ایک پل میرے لیے قیامت بن گیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلا اور لمبے کوریڈور سے گزرا تو مجھے لگا کہ ہر طرف سے لوگ مجھے گھور رہے ہیں، کہیں کوئی میرا پیچھا نہ کر لے، کہیں کوئی سیکیورٹی والا نہ روک لے۔ خوف میرے اندر اس قدر بڑھ گیا
कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगला कदम कहाँ रखूं। बस एक ही बात जहन में थी कि किसी तरह बाहर निकलना है और अपनी जान बचानी है। मैंने बड़ी मुश्किल से होटल का मरकजी दरवाज़ा अबूर किया। बाहर आके सांस लिया जैसे मेरी जान वापस लौट आई हो। मैंने सीधा गांव जाने का फैसला किया क्योंकि शहर में रुकना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे पास वही पैसे थे जिसने मुझे पहले भेजे थे और कुछ मेरी पुरानी सेविंग्स थी। गांव पहुंचा तो माँ ने बड़ी खुशी से कहा कि हम तो तेरे साथ खुशखबरी बांटने वाले थे क्योंकि तेरी शादी की बात पक्की हो गई और हम तुझे फ़ोन करने ही वाले थे कि अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। अब हम जल्दी से तेरी शादी करा देते हैं। ये सुन के मेरे अंदर एक सुकून पैदा हुआ कि शायद अब मैं इस गुनाह की दुनिया से निकल सकूं। शादी के दिन लोग मुझे देख के कहने लगे कि ये तो पहले वाला अलमीर नहीं रहा, ये तो आधा अलमीर रह गया है जिसे शहर ने खा लिया हो। उसके चेहरे पे वो ताजगी नहीं रही, इसके बाजुओं में वो ताकत नहीं रही। लेकिन सबने ये भी कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी से फिर से सेहतमंद बना देगी। उस वक्त मैंने अपने दिल में अहद किया कि अब मैं कभी इस काम को नहीं दोहराऊंगा। अब बस मैं अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा और जो पैसे मेरे पास बचे हैं उनसे कोई छोटा मोटा कारोबार करूंगा ताकि इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। क्योंकि अब मुझे अपनी माँ की आंखों की चमक और अपनी बीवी के ख्वाबों की हिफाजत करनी थी। यही मेरा सबसे बड़ा मकसद था। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश था और दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि ये ज़िंदगी मेरे लिए खुशियाँ लेके आई है। मेरी बीवी जवान थी और हसीन थी। वो मुझसे उम्र में भी बहुत कम थी और गांव के लोग भी यही कहते थे कि अलमीर किस्मत वाला है जिसको ऐसी लड़की मिली। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल चाह रहा था कि अपनी बीवी को करीब करके बताऊं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा मैं अपनी बीवी को खुश न कर सका। वो हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और बस यही बहाना बनाया। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी ताकत ख़त्म हो गई थी और मैंने जो ख्वाब देखे थे वो टूट गए थे। मेरी बीवी ने चुपचाप मुझे देखा और कुछ न कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे और मुझे डर था कि कहीं ये सवाल लफ्ज़ों में न बदल जाए। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो वो खामोश रही, लेकिन उसकी खामोशी मेरे दिल में चुभ रही थी। शाम को जब हम खाने पे बैठे तो उसने कहा कि ये कौन सी बीमारी है जिसका नाम ही नहीं लेते। आप एक दिन से कह रहे हैं कि तबीयत ख़राब है, मगर बीमारी है क्या? मैंने उसकी बात टालने की कोशिश की लेकिन वो जिद पे अड़ गई। उसने कहा कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की? अगर आप मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जो हर औरत चाहती है तो फिर ये सब किस लिए है? मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बीमार हूँ और बस कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि अगर बीमारी है तो दिखाओ, डॉक्टर को क्यों छुपाते हो? क्या बीमारी ऐसी है जो सिर्फ रात को होती है और दिन में ख़त्म हो जाती है? मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मुझे समझो। लेकिन वो बोली कि बीवी भी तो एक इंसान है, वो भी ख्वाब लेके शादी करती है, क्या मेरा ख्वाब टूटना चाहिए? चंद दिन और गुजरे। फिर एक रात जब हम दोनों कमरे में थे उसने झुंझुला के कहा कि अलमीर, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत की भी परवाह नहीं। मैं क्या जवाब दूँ लोगों को कि मेरा शौहर मेरा हक पूरा नहीं कर सकता? मैंने कहा कि तुम ये सब अपनी माँ को ना बताना, वरना सारी ज़िंदगी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो गुस्से से बोली कि मैं कब तक ये सब छुपाऊंगी, कब तक ये बोझ अपने दिल पे रखूंगी। एक दिन हम छत पे बैठे थे। मैंने बात बदलने के लिए कहा, देखो मौसम कितना अच्छा है, हवा भी ठंडी है। वो बोली, मुझे मौसम से कोई गर्ज नहीं, तुम अपने वादे पूरे नहीं कर सकते तो मौसम मेरे किस काम का? उसकी ये बात मेरे सीने में तीर की तरह लगी। फिर एक झगड़ा उस वक्त हुआ जब वो बावर्ची खाने में थी। मैंने कहा कि खाने में नमक कम है। उससे झंझुला के कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हारे लिए खाना बनाने को। तो कैसा मर्द है जिसकी बीवी की मेहनत ही नज़र नहीं आती और हक भी पूरा नहीं करता? मैंने कहा कि ऐसी बात ना करो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन वो हंस पड़ी और बोली, तुम बदल नहीं सकते क्योंकि तुम मर्द नहीं हो। एक दिन तो वो इतने गुस्से में आ गई कि बोली, काश मेरी शादी किसी और के साथ हो जाती, वो कम से कम मुझे औरत समझता। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो बोली कि तुम्हारे साथ मैं अधूरी हूँ और अधूरी औरत किसी काम नहीं आती। ये सब बातें मेरे लिए जहर की तरह थी। मैं अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसको कैसे बताता कि मेरी बीमारी, मेरी कमज़ोरी, मेरी कमाई के उन दिनों का नतीजा है जब मैंने अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखा और बस पैसों के लिए अपनी ताकत को बेच डाला। मैं रोना चाहता था लेकिन आंसू अंदर ही अंदर खुश्क हो गए थे और मेरी बीवी की नफ़रत बढ़ती जा रही थी। मैंने अपना चेकअप करवाया तो मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर मुझे वो खबर दे दे जिससे मेरी
ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने सोचा कि अगर मुझे एड्स हुआ तो मेरी बीवी क्या करेगी, मेरा घराना क्या करेगा, गांव वाले क्या कहेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एड्स नहीं हुआ था। मगर डॉक्टर ने मुझे कमरे में बिठाया और कहा कि तुमने अपने जिस्म को इस तरह इस्तेमाल किया है कि अब तुम्हारा जिस्म तुम्हारे काबू में नहीं रहा। ये सुन के मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई हो। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे तो तुम और कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हारे पास ना ताकत रहेगी ना हिम्मत, और तुम अपनी बीवी का हक भी नहीं अदा कर सकोगे। मैंने कहा कि इसका कोई इलाज है? तो डॉक्टर ने कहा कि इलाज ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी का तरीका बदलो, अपने दिमाग को सुकून दो, अपने खाने पीने का ख्याल करो, अपने जिस्म को वक्त दो, वरना देर हो जाएगी। घर वापस आया तो मेरी बीवी मेरे इंतज़ार में बैठी थी। वो पहले से ही दिन से देख रही थी कि मैं बीमार रहता हूँ, और अब तो उसने अपनी हैसियत बदल के नर्स जैसी ज़िंदगी इख्तियार कर ली थी। वो मेरे लिए खाना बनाती, पानी लाती, मेरी दवा देती, लेकिन मैं ये सब देख के भी खुश न हो सका, क्योंकि मैं जानता था कि वो ये खिदमत पूरे दिल से नहीं कर रही। वो बस इस रिश्ते की मजबूरी की वजह से ये सब कर रही थी। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मैं चारपाई पे पड़ा रहता, वो कभी मेरा सर दबाने लगती, कभी मेरे लिए